Okay, let's start. So I think we have completed the analog experiments up to full wave rectifier. Am I right? Yes, anyone? Have you completed the full wave rectifier? Yes, sir, they have completed. I think they are not speaking. Okay. So the next experiment is to study the operation of clipper and clamper circuits using PN junction diode. So we will design different circuits. There will be different configurations for clipper and different configurations for clamper. We will design all those circuits and then we will check the operation of these circuits. We will analyze how they behave when we apply input signals to them. So if सर you are making, yes, सर हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट की सबमिट वाली लिंक ओपन नहीं थी लिंक अभी क्लोज दिखा रहा है क्या? सर वो कल हो नहीं रहा था सबमिट एक्सपेरिमेंट 4 लिख रहे थे या 3 जो भी है वो एक्सपेरिमेंट हाँ 2 तक ही ले रहा था गूगल फॉर्म्स में कोई तो लिमिटेशन है सर। अच्छा, चलो मैं चेक करके फिर आज शाम तक ठीक करता हूँ. ओके सर। ओके, एक्सक्यूज मी सर, यस. सर एक्सपेरिमेंट जब नहीं सबमिट हो रहा था तो मैंने 2 करके सबमिट कर दिया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करके यस सर। चलो देखते हैं, मैं दोबारा सॉर्ट आउट कराता हूँ. Okay. So in designing the clipper and clamper, what we need is a PN junction diode. We can have one PN junction diode. We can design some complex circuits using 2 PN junction diodes. Then one function generator to generate a particular type of waveform, whether we want sinusoidal signal, square wave, or triangular wave. Then one DSO or CRO to observe the input waveform and output waveform. One load resistance across which we generally take the output, and one capacitor that we will be using in the designing of clamper circuit. One breadboard where we will mount different components and jumper wires to connect different components on the breadboard. So these are all the apparatus required when we will design the circuit on the hardware. You have to go through that video which is available online on the website. You watch those videos after the end of this lab. If you find anything, any doubt, then you can ask in the next lab, or you can also ask personally. Okay. In this lab now we will design the circuits on the multi. So I think you have all covered this in syllabus in your class, clipper and clamper. Have you done these? सर ऑनगोइंग ही है, अभी चल ही रहा है, थ्योरी अभी पढ़ा क्या रही चल है। रहा है? क्लैम्पर चल रहा है कि क्लिपर चल रहा है? क्लैम्पर सर। Okay. So what we will do is we will just design the circuits which are of clipper only. We will study the clamper in the next lab. So you will submit the experiment only after the next lab. क्लिपर और क्लैम्पर के दोनों एक साथ सबमिट करने हैं, अलग अलग फाइल नहीं बनानी. ठीक है, तो आज आप क्लिपर्स के जितने भी सर्किट हैं वो बना लीजिए. ठीक है, so you all of you know that a clip, what is the function of a clipper circuit? It clips a part or portion of the input waveform. Now it depends what portion has been cut out. If we have connected diode in this combination, then positive half will be available and negative half will be clipped. If we have just reversed the orientation of the diode, then the negative half will be available in the output waveform, but positive half will be clipped. Now this is due to the fact that your diode conducts current only in one direction when it is forward biased, and when it is reverse biased, it does not conduct any current. So this diode will conduct only in the positive half, and this diode will conduct only in the negative half. Okay. So we will use this type of property of the diode to design the clippers. Now there are two different types in which we can classify the clippers,
and these types are series clippers and shunt clippers. So series clippers means the terminals across which we are taking the output and the diode, these are in series. We are taking the output at this terminal, so this is directly connected to the diode in series. That's why the name is series clipper. If the diode is in parallel to this output, these two output terminals or this load resistance, then we will say that this type of clipper is shunt clipper, that you can see in the next diagram, also known as parallel clippers. So you can see this here. Here we are taking output in parallel to the diode. So that is the only difference. There is no other difference. The components that we require, that are also same. It's just the connection or the terminals across which we apply the input and we take the output. Here we are applying the input to the resistor, and here we are applying input to the diode and taking output across the resistor. This is the first classification, whether it is a series clipper or shunt clipper. Then there is second observation that we have to look at, which is whether it is a negative clipper or it is a positive clipper. Now that depends on what type of clipper do we want and how the connections are made. Negative clipper, only negative part is clipped. On positive clipper, only positive portion is clipped. So what portion is clipped, that will decide this type of circuit. So in any clipper circuit, what you have to identify is, first you need to identify whether it is a clipper or it is a clamper. एक clamper के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे. First you have to identify that it is a clipper. So there must be a resistor connected and one diode. Then you have to identify whether it is a series clipper or shunt clipper. Then you have to identify whether it is positive clipper or negative clipper. Then you have to identify whether there is any biasing or not biasing. What do we mean by biasing is that if there is any other external DC supply that is connected in the network, अगर वो है तो हम बोलेंगे that this is a biased positive clipper of series type. इस तरीके से तो ये चारों चीजें जब आप बताओगे, only then you will be able to identify the circuit completely. So whenever you are asked what type of clipper is this, you have to tell these four things. ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल डीसी पावर सप्लाई हमने भी यूज नहीं की है. These are normal clipper circuits, unbiased clipper circuits. ठीक है, so what you can do now is design this circuit in the multisim, apply an input AC signal of let's say 5 volt or 10 volt, whatever you want, and then observe the output. First make connections like this, then second figure, after that third figure and fourth figure. ठीक है, so basically आपको एक ही सर्किट डिजाइन करना है, उसी में आपको फिर कनेक्शन जो है वो ऊपर नीचे करना है. This circuit we have already designed during the half wave rectification process. जो हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें भी ये आपका बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर ही है. यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया था और साइनसॉइडल दोनों से किया था. ठीक है, सो नाउ डिजाइन दिस सर्किट. पहले ये सर्किट बनाइए, ऑब्जर्व द आउटपुट. इसमें से सिंपली इसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, देन ऑब्जर्व द आउटपुट. फिर ये वाला सर्किट बनाइए और फोर्थ सर्किट. सर यस सर इसमें इनपुट कैसे देना है, ट्रांसफार्मर वाला कि हम आप कोई भी इसमें नॉर्मल सिंपल एसी वाला इनपुट दे सकते हैं? एसी वोल्टेज. सिंपल एसी ना सर? हाँ ठीक है सर. ठीक है, तो आप लोग इसको डिजाइन कीजिए. आपको कोई डाउट आता है तो फिर आप पूछना. एंड वंस यू कंप्लीट द सर्किट, जब भी आपको कोई सर्किट कंप्लीट हो जाता है, यू वांट टू शेयर योर आउटपुट, यू कैन शेयर द स्क्रीन.
आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले फर्स्ट सर्किट, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद बायसिंग वाले सर्किट हम करेंगे। या आप फर्स्ट सर्किट डिजाइन करके उसमें बायसिंग कर सकते हो, फिर सेकंड सर्किट डिजाइन करके उसमें बायसिंग कर सकते हो, इस तरीके से भी मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, जो जो सर्किट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट इज ए पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन क्लिपर एंड इट इज बायस्ड आल्सो। ठीक है, तो पहले आप सिंपल डिजाइन कीजिए, देन मूव ऑन टू दी बायसिंग सर्किट। So please keep on sharing your screen once you have completed the design. Anyone drawn it? I think it will hardly take 2 to 3 minutes. सर पॉजिटिव और नेगेटिव सीरीज में बना दिया, पैरेलल में भी रहता है। Share your screen. मैम इज इट विजिबल? Yeah, it's visible. मैम It दिस is इज द series positive. पॉजिटिव clipper. This is the graph. Okay. Negative clipper and negative clipper graph. Okay. I have to start parallel. Now start parallel. Okay. Remember one guys thing, please keep on saving your circuits and your output so that you can later on add them to your file. ऐसा ना हो कि आप उसी
स्कीमेटिक में चेंज करते रहो तो आपके पिछले फिर आपको दोबारा बनाने पड़े। So keep on designing new circuits with the name such as experiment 5.1, 2, 3, like this. और जिसको भी कोई प्रॉब्लम आए अभी आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आज सिर्फ क्लिपर के सर्किट करने हैं, वो आराम से हो जाएंगे लैब टाइम। मैम मेरा ग्राफ बहुत बड़ा आ रहा है, तो मैं वोल्टेज की लिमिट क्या रखूं? कितना तुमने वोल्टेज इनपुट पे लिया है? क्या मैम? इनपुट पे कितना वोल्टेज लिया है? 10 लिया मैम। हाँ तो -10 से 10 रख लो। ठीक है। मैम एक बारी पॉजिटिव क्लिपर का चेक कर लो मेरा। हाँ जी दिखाओ। ये यूआर सीरीज पॉजिटिव, ठीक है, ओके। मैम मेरा भी पॉजिटिव देख लो। दिखाओ। ठीक है मैम। ओके ठीक है। मैम मैंने पैरेलल में पॉजिटिव कर लिया। दिखाओ बच्चे। यश आप ही हो ना? यस मैम। हाँ ठीक है, दिखाओ। आपके सीरीज तो हो गए थे। मैम इसमें ये डायोड का वो रेफरेंस ये लेके मैंने पैरेलल में लिया। हाँ, एक्चुअली डायोड का कंडक्शन कितना वोल्टेज होता है? 0.7 फॉर द, तो ये 0.7 के बाद कंडक्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव साइड में कुछ नहीं है, आउटपुट पे 0, तो 0.7 पे स्टेबल बना देगा, तो 0.7 ही आएगा एज आउटपुट में पॉजिटिव साइड में। इसका 0.7 ग्राफ ऐसा हाँ है। हाँ, ग्राफ ठीक है। नेगेटिव साइड में पूरा लेगा,
क्योंकि इट्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्लीवर है, बट नेगेटिव हाफ में, पॉजिटिव हाफ में क्या कर रहा है, 0.7 पे स्टेबल बना देगा। कितना आ रहा है मैम तुम्हारा? ये है ना 700 मिली वोल्ट, हाँ हाँ ठीक है, नहीं आ रहा। 0.7 ओके। ठीक है मैम। एक मिनट शेयर करके रखना स्क्रीन। एक तो ना इसकी इसकी नीड नहीं है हमारे पास, रेफरेंस वोल्टेज की जो आपने की है। क्या है सर? इसमें जैसे ये डायोड के बाद रेफरेंस वोल्टेज लगाया है, यस सर। वो हमारा ये हटा ग्राउंड पे आ सकते जाएगा, हो, वो एक ही बात है, कनेक्ट होगा। या तो रेफरेंस वोल्टेज लगा लो या लगा लो, एक चीज है। हाँ, रेफरेंस वोल्टेज हटा ठीक है दो सर, बेस। ठीक है, और इसको एक हटा चीज और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये सर्किट काम कैसे कर रहा है। अगर किसी को डाउट हो कि सर ये इतना कंडक्ट कर रहा है, इतना क्यों आ रहा है, आप पूछ लीजिएगा। ठीक है सर। ओके। अभी इसमें सर नेगेटिव बनाना ना, फिर पैरेलल में वो डायोड को रिवर्स करके बस। हाँ, ठीक है सर। मैम एक बार मेरा पॉजिटिव कैमरा चेक। हाँ जी बच्चे बताओ। स्क्रीन शेयर हो रही है गौतम अपनी रेंज चेंज करो बच्चे। मैम? कितनी करूं? -10 लिया ना तुमने, तो -10 से 10 करो। वोल्टेज लिमिट। अब सही आ रहा है? ठीक है। मैम मेरा एक बारी नेगेटिव क्लिपर चेक कर लो। हाँ जी बच्चे। ठीक है। ठीक है, ओके। मैम मेरा पैरेलल देख लो एक बार। हाँ जी रोशनी लिखो। ठीक है मैम। ये तुम्हारा है, ओके, +1, ठीक है।
सीरीज क्लिपर किस किस के हो गए? अनंता के हो गए, आनंदी आपके हो गए बच्चे? यश, हाँ आया है यस मैम। मैं चारों साथ में दिखा देती हूँ। चारों साथ दिखाओगे, ओके। हाँ जी। गौतम के हो गए, मनन आपके हो गए बच्चे? मनन हांडा, आर यू हियर? यस मैम। बच्चे आपके हो गए सीरीज क्लिपर्स दोनों? यस मैम, पैडल बना रहा हूँ मैं। ओके, आपने शो कर दिए थे? नहीं, तो शो करो बच्चे, सीरीज वाली या चारों एक साथ दिखाओगे? ऐसा सीरीज दिखा दो तो पहले। दिखा दो। विजिबल है मैम। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट वन। ओके ठीक है, पैडल बना रहे हो। ओके। मैम मेरा एक बारी पैरेलल देख लो। हाँ जी दिखाओ। हम्म। आपका है ये, ठीक है, ओके ठीक है बच्चे। अगर आप लोगों के ये वाले सर्किट हो जाएं तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे भी जिस ब्रांच में आपने डायोड लगाया है उसमें एक तरफ जो है वो 2 वोल्ट या 1 वोल्ट की बैटरी लगा के उसको दोबारा इससे चेक करो रिजल्ट। फिर बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करके फिर चेक करो कि आउटपुट कैसे आती है। बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज कितनी रखनी है? वो आप जैसे अगर आपने 5 वोल्ट का रखा है इनपुट वोल्टेज तो 1 to 2 वोल्ट रख सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, तो आपको मतलब ये क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि बैटरी इस तरफ लगी है तो आउटपुट ऐसी क्यों आ रही है, उसकी पोलैरिटी रिवर्स हुई तो आउटपुट ऐसी क्यों आ रही है। किसी को भी कोई भी डाउट लगे तो आप तुरंत स्क्रीन शेयर करके पूछना। सक्षम बच्चे, आपका सीरीज और पैरेलल वाला हो गया? मैम मैं लेट ज्वाइन किया था मैम, जो अभी दिखाया था ना आपने बस वही बनाया मैंने। चलो बनाओ दोनों, एक सीरीज का एक पैरेलल के, दोनों के दो दो, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, ठीक है। मैम इसके बाद सीरीज में दोनों में बैटरी लगानी है बस? हाँ बैटरी लगानी है, या तो एक काम करो पहले यही कंप्लीट कर लो सारे, एक कॉम्बिनेशन वाला भी बचा हुआ है ना, कॉम्बिनेशन क्लिप, वो कर लो तो तुम्हारा क्या मैनुअल वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर बैटरी लगा के चेक कर लेना आउटपुट। एक आपका क्लिपिंग ऑफ बोथ हाफ साइकिल्स की पॉजिटिव 0.7 नेगेटिव 0.7, दैट इज फॉर द कॉम्बिनेशन, तो वो आप कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद में बैटरी लगा के चेक कर लेना। मैम बैटरी वाला मैनुअल में नहीं है क्या? नहीं बैटरी वाला मैनुअल में नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं। ओके।
मैम चारों देख लो। हाँ जी बच्चे दिखाओ। मैम फर्स्ट तो ये है, हम दिख रहा है हाँ हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये उसके बाद ये वाला पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वन, ओके। मैम फिर ये पॉजिटिव पैरेलल। ओके ओके एंड ठीक है देन ठीक है। नेगेटिव पैरेलल। दैट इज पॉजिटिव पैरेलल, दिस वन इज यस मैम, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, वो दूसरा वाला। वो वाला नेगेटिव था, ओके यस मैम। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी चेक कर लो। हाँ जी बच्चे। ओके पॉजिटिव वन, ओके ओके नेगेटिव वन, ओके
parallel positive. Okay, parallel negative. Okay, good. Stop sharing. Who have drawn the combinational one? Combination of circuits. मैंने एक बार मेरा चेक कर लो पैरेलल। हाँ जी। Russia. You have taken 1 volt. Yes, ma'am. बच्चे थोड़ा ज्यादा लो, इतना तो क्लिप ही हो गया, थोड़ा लो 5 लो कम से कम, पता भी नहीं चलेगा। अब हो रहा है मैम? हाँ, रेंज चेंज कर दो, -5 से 5। हमें ऐसा बन रहा था। करो, फिर से रन करो। ठीक है, क्योंकि इसमें पता चल रहा है ना 0.7 पे क्लिप हो रहा है, तो आप देख सकते हो अगर आप 1 ही ले रहे हो 0.7 पे तो आपका क्लिप ही हो रहा है, 1 तक ही आउटपुट जा रही है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा लो जिससे कि पता चल जाए 0.7 पे क्लिप हो रहा है। इसमें भी समय चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, इसे चेंज कर दो, आउटपुट आपकी ठीक आ रही है। एंड दीज ऑल आर नॉन आइडियल डायोड्स। जहां आपका आउटपुट 0 आ रहा था वहां पर आप आइडियल डायोड लेके चल रहे थे। जहां पर आपका 0.7 आ रहा है इन केस ऑफ सिलिकॉन, दैट मींस दीज ऑल आर नॉन आइडियल डायोड्स। बस ठीक है बच्चे, ओके। अब मेरा भी कर लो चेक। हाँ जी। Okay, positive. You are trying for positive, negative. Okay, -1.
Who have drawn the combinational one? Combination of both circuits? Yeah, share it. Okay. Okay, wait. बस नीचे की थोड़ी रेंज चेंज कर लेना, 5 -5 तक कर देना, वो आपने 4 तक ही कर रखी है। अब जिसका कॉम्बिनेशन वाला हो गया बच्चे, अब वो बायसिंग वोल्टेज लगा के देखो क्या आउटपुट आ रही है, सो दैट इट विल बिकम क्लियर कि क्यों 0.7 आ रहा है। अगर बायसिंग वोल्टेज लगाओगे तो कितना आएगा, नेगेटिव में कितना आएगा, पॉजिटिव में कितना आएगा, आपको पता चलेगा। मैम एक बार कॉम्बिनेशन वाला चेक करना। हाँ जी अनंत, दिखाइए। ठीक है। हाँ कॉम्बिनेशन देख लो। हाँ जी रुशील दिखाओ। ठीक है। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कॉम्बिनेशनल क्लिपर को? एनीवन? बताइए आपकी आउटपुट जो आ रही है वो ठीक तो आ रही है, पर उतनी ही क्यों आ रही है? करो करो, कोशिश करो बताने की। मिताली? यस सर। ट्राई करो कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सर्किट ही नहीं बन रहा। स्क्रीन शेयर करो। Yes. बन तो गया। नाउ आउटपुट के लिए एक वोल्टेज प्रोब और लगा दो। मतलब एक और डायोड लगाना है? नहीं नहीं, नॉट डायोड, वोल्टेज प्रोब टू मेजर द वोल्टेज एट द आउटपुट टर्मिनल। हाँ सर ये पे। कॉम्बिनेशन वाले की करिए। अच्छा, कॉम्बिनेशन के लिए कह रहे हो क्या? यस सर। हाँ तो एक काम करो, इसी डायोड को कॉपी कर लो, यहीं पे नया डायोड ले लो, इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दो। ओके, मैंने दोनों की सेम डायरेक्शन रख ली शायद। हाँ तो वो फिर एक ही तरह काम करेगा ना फिर तो।
डायोड से स्टार्ट करो। हाँ, Do one thing, go to ground. If you cannot draw it like this. हाँ, नाउ रन कर दो। पोज कर दो फिर। ग्राफर पे क्लिक करो, ग्राफर पे। -5 to 5 कर दो या -6 to 5, 6 to 6। एंटर, हिट एंटर। ठीक है। अब बताओ ये क्यों आ रहा है ऐसी आउटपुट, इसको एक्सप्लेन करो। जितना आता है उसी हिसाब से आप एक्सप्लेन करो, फिर देखते हैं, डरो मत। तो क्या एक्सप्लेन करना है? ये आपकी जो ये आउटपुट है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये ऐसी क्यों आई है कॉम्बिनेशन पेपर में। डरो मत, कोई बात नहीं। अब आपको पता तो है ही, बस आप वैसे ही झिझक रहे हो। Audible. Yes, you are audible now. Sir, I don't know. वैसे चलो ये बताओ, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल विच ऑफ द डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस? D1. D1। ठीक है, तो अगर वो D1 फॉरवर्ड बायस है तो वी कैन रिप्लेस द D1 डायोड ब्रांच विद दिस सर्किट। हम एक बैटरी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि सिलिकॉन डायोड यूज कर रहे हैं, हमारा आइडियल डायोड नहीं है, तो हम ऐसे बना सकते हैं D1 डायोड वाली ब्रांच को। Yes, sir. और इसकी वैल्यू जो है वो हमारी हो जाएगी 0.7 वोल्ट। ठीक है, so this is the equivalent circuit during the positive half cycle. Now during the positive half cycle, what will be the condition of D2? It will be forward bias or reverse bias? Reverse. Reverse bias, so we can replace it with its equivalent circuit, which is open circuit. Okay, now this is the equivalent circuit of the network when we are having positive half cycle. Now you just have to measure the output. तो ये वाली जो ब्रांच है वो आपकी है ही नहीं इसके अंदर। इन दोनों ब्रांचेस की जगह मैंने दो नई ब्रांचेस लगा दी हैं, जिसमें एक ओपन सर्किट ब्रांच है और एक बैटरी लगी हुई है 0.7 वोल्ट। तो ओपन सर्किट की है, that will not make any difference, but now we are taking output across these two terminals. So we are basically taking output across a battery of 0.7 volt. So that's why we are getting 0.7 volt right here during the positive half cycle. Okay, now similarly in negative half cycle, this diode will be reverse biased, diode D1. So we can replace it with this open circuit, and this diode D2 will be forward biased. So we can replace it with its equivalent circuit, which will be a battery connected like this.
इसकी वैल्यू भी आपकी रहेगी 0.7 वोल्ट, और ये वाला डायोड आपका रहेगा नहीं. So right now, if we are measuring the output across these two terminals, so this is also equivalent to the previous one, but now the polarity of the battery has been changed. पहले आपकी जो 0.7 था वो पॉजिटिव था, like this. ठीक है, अभी जो है वो -0.7 है, so that's why we are getting -0.7 volt right. ठीक है बच्चे, अभी समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन. ओके, चलो उसके लिए एक मैं आपको जो है वो दूसरा सर्किट बना के दिखाता हूँ. बायस सर्किट जिसमें हमारे कॉम्बिनेशन भी होगा और उसमें बायसिंग भी होगी. Okay, can you guys see the screen? Yes, sir. Okay. So हमने इसमें क्या किया है, सिंपल वही आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट है. देयर आर टू डायोड्स एंड देयर आर टू बैटरीज V1 एंड V2. ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू discuss how we have reached to these particular voltage levels in the output. क्योंकि पहले हमारे सिर्फ एक डायोड था तो हमने सिंपली बोल दिया कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस विल बी फॉरवर्ड बायस, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल दिस वन विल बी फॉरवर्ड बायस. The general method to do this type of circuit is to mark these diodes, mark these 2 points A and B. Similarly, mark these points C and D. Okay. Now, if I ask you, the diode D1 will be forward biased if voltage at A minus voltage at point B is greater than or equal to 0.7 volt. इस स्टेटमेंट में किसी को कोई डाउट है तभी पूछिए. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Anyone? Okay. So this is the general method to solve any problem of the diode. आप दो पॉइंट्स को मार्क कीजिए, A and B. This diode will be forward biased if VA, which is connected to the P terminal, minus VB connected to N terminal of the diode. If this is greater than equal to 0.7 volt. अगर यहाँ पे आइडियल डायोड होता, then I will just write here it is greater than equal to 0 volt. If it was a germanium diode, I would have written here as 0.3 volt. So this is basically your VP, नी वोल्टेज कह सकते हो आप उसको, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कह सकते हो. ठीक है, तो इस कंडीशन से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आप देखिएगा सारी कंडीशन आपकी ऑटोमेटिकली बनती जाएंगी. ठीक है, तो VA पे आपका जो है वो क्या कनेक्ट है, सिंपल डायरेक्टली इनपुट सप्लाई. I will not write 5 volt here considering positive or negative half cycle. I will not write anything. I have simply written that D1 will be forward biased if this is true, and what is connected at VA is input voltage V in minus VB. B point पे आपका क्या कनेक्ट है, 1 volt की बैटरी. So look at the polarity of this battery. This is positive terminal. So what I will simply write here V1 because this is the biasing voltage of this particular diode. ठीक है, minus V1 if this is greater than equal to 0.7 volt.
ठीक है. Now just keep V input on the left hand side and rest of the thing on the right hand side. So V input greater than equal to V1 plus 0.7 volt. ठीक है. So your diode D1 will be forward biased if input voltage is greater than equal to V1 plus 0.7 volt. ठीक है. इस कंडीशन को हम लिख के we will leave it right here. Then we will do the same thing with diode D. Diode D2 will be forward biased if VC minus, not VC, point D is marked as P type of diode. So we will write here VD minus VC is greater than equal to 0.7 volt. Now what is connected at VD? VD पे हमने V2 connect किया हुआ है. We will not look at the polarity of these things. We have simply used two batteries V1 and V2. वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, हम बाद में देखेंगे. ठीक है. तो VD पे हमारा हो गया V2 माइनस VC. C पे हमारा कनेक्ट है इनपुट वोल्टेज. तो V in it should be greater than equal to 0.7 volt. ठीक है. इसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे. माइनस ऑफ V in is greater than equal to minus V2 plus 0.7 volt. ठीक. अगर हम इसकी साइन चेंजेस करें तो वो आपका इक्वल टू होगा दिस. इफ V in is less than equal to V2 minus 0.7 volt. ठीक है. ये दो कंडीशन आ गई हैं. So diode D1 will be forward biased for this at this level. D2 will be forward biased at this level. Now what you can do is just a minute. इसका रन करने का बटन कहाँ है? So we will mark these transition lines. These conditions that we have derived here, these are generally known as transition lines. Okay, so what I'm just erasing these 2 points now. Now put the values of V1 and V2 in these lines, in this condition. So V1 is your 1 volt. Okay, so 1 volt plus 0.7, so 1.7 volt. So I will simply draw a line equal to 1.7 volt. Similarly, I will draw another line which is equal to V2 minus 0.7 volt. Now at V2, I have given minus of 1 volt. So minus 1 minus 0.7, that will become minus 1.7 volt. So I will draw another line equal to minus 1.7 volt. Okay. Now that we have drawn these two transition lines,
I will mark the regions in which the diodes are biased. So above this region, diode D1 is biased, and below this region, diode D2 is forward biased. Okay, so this is for D1 forward bias, and this is for D2 forward bias. Okay, now what you can do is simply draw the equivalent circuit of the network when one of these diodes is forward bias or reverse bias. One more thing, you can simply clearly see that the conditions for forward biasing of the diodes are mutually exclusive. That means if one of the diode is forward bias, then D2 is automatically reverse bias, क्योंकि D1 forward bias होगा 1.7 से ऊपर. So if it is forward bias, then automatically D2 is reverse bias. So draw the equivalent circuit as we did earlier. Okay, so I'm drawing this for this when D1 is forward bias. So forward bias में हम उसको replace करते हैं एक इस तरीके की बैटरी. ठीक है, दिस इज रिवर्स बायस, तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा ओपन. ठीक है, इनकी वैल्यूज जो है वो हमारी रहेंगी 0.7 वोल्ट. अब ठीक वही बात हम वी आर टेकिंग आउटपुट अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स. ठीक है, तो इस ब्रांच में जितनी भी आपकी बैटरीज हैं उनका इक्विवेलेंट सम जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा. यहाँ पे हमारा जनरली प्लस होता है ये आउटपुट पे, और यहाँ पे हमारा माइनस होता है. तो दिस इज 1 plus minus polarities of the battery. Then again polarities of this battery across the diode is also the same, minus plus. So two batteries in series, polarities are such that we can directly add them. So that this will become 1.7 volts. So in the region in which your diode D1 is forward biased, the output voltage comes out to be 1.7 volts. तो अगर आपने ध्यान दिया हो यहाँ पे हमारे जो आउटपुट आई थी that was constant 1.7 volt. 1.7 volt. 1.7 volt. Whenever input voltage is greater than 1.7 volt, output voltage is 1.7 in these particular regions. Same is the case for diode D2. For D2, this will be reverse biased, and this will be forward biased, and the polarity of the battery will be like this. वैल्यू आपकी सेम रहेगी 0.7 वोल्ट. Now again look at the polarity. This is minus plus, सॉरी यहाँ पे -1 वोल्ट है, तो -1 वोल्ट को हम कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से. ये आपका -1 वोल्ट है, तो आपकी जो पोलैरिटीज है वो इसमें थोड़े चेंज हो जाएंगे. प्लस माइनस, अगेन प्लस, अगेन माइनस. ठीक है, so this is also equal to 1.7 volt, but now the polarity is reversed. So in the region in which your input voltage is satisfying this condition, then diode D2 is reverse biased. This is equivalent circuit, and we are getting constant -1.7 volt as output in these particular regions. ठीक है, so far we have talked about two regions, and out of them, one of the regions, one diode is forward biased. In another region, another diode is forward biased. Now, what is happening in this particular region, that is in between?
because in this reason input voltage is less than this condition, so it is not satisfying this condition. That means diode D1 is reverse bias. Also, in this reason input voltage is greater than this condition, it is not satisfying this condition, so diode D2 is also a reverse bias. So that means this is that particular region in which both the diodes are reverse bias. इस रीजन के अंदर आपके दोनों डायोड्स जो है वो रिवर्स बायस है. सो रिप्लेस देम विद देयर इक्विवेलेंट सर्किट. And that will be open circuit, both of the diodes. So that means these two batteries now will not have any effect on the output. So these are open circuited, and what we are getting at the output terminals is directly the input supply. Whatever is being applied at the input terminals, that is being transferred at the output. So that's why in between these regions your output is following the input waveform. As your input voltage keeps on increasing, it increases up to a value 1.7. Then this diode becomes forward bias, voltage is maintained at 1.7. As soon as your input voltage again decreases, then both the diodes become reverse bias and your output follows the input waveform. At this point, input voltage is lower than this condition, then the output is constant. As soon as it is again not satisfying, the output is following the input. Okay, so if both the diodes are reverse biased, output will follow the input. If any of them is forward biased, then you have to look at which one is forward biased, what is its polarity, what type of material it is made of. Now instead of अगर हम यहाँ पे आपके क्वेश्चन में मार्क किया हुआ होता that this is a silicon diode and this is a germanium diode, तो भी आपकी जो आउटपुट है वो चेंज हो जाती है. इस बैटरी से हम इसको रिप्लेस करते हैं ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस, वो अब 0.3 वोल्ट की. ठीक है गाइस, एनीवन एनी डाउट? Yes, please. No, sir. Okay, so if you have derived these two conditions, then you can easily solve any problem of the p-n junction diode. इसमें एक ही चेंज करना होता है इस पॉइंट पे. If it is silicon, 0.7. If it is germanium, then 0.3. And if it is ideal diode, then mark it as 0. Solve it, find out the conditions, draw dotted lines on the input waveform, and below that make the output waveform in specific region. अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कोई भी आपका स्टेप जो है वो मिस नहीं होगा, कोई भी वोल्टेज लेवल आपकी जो है वो गलत नहीं. ठीक है, अब हम इनकी पोलैरिटीज को आप चेंज करके भी जो है वो और खेल सकते हो अपने इस डायग्राम सर्किट के साथ. मैंने यहाँ पे 1 वोल्ट था, इसको मैं अगर चेंज कर दूं 1 वोल्ट की जगह 2 वोल्ट, ठीक है, तो अब ये है जो है वो 2.7 तक चला गया है, 2 + 2.7. ठीक है, अब मैं इसके में अगर -1 वोल्ट है, यहाँ पे अगर मैं -1 वोल्ट की जगह इसको भी जो है वो 2 वोल्ट लिख देता हूँ, +2 वोल्ट, नॉट -2. ठीक है, देन वी विल लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो अब आप देखिए आपकी आउटपुट कहाँ आ रही है. द मैक्सिमम वोल्टेज इज 2.7 given by these two components. Minimum voltage is 1.3. It is also positive. Now remember that thing. इसमें आपका नेगेटिव में नहीं आया है, ये पॉजिटिव में ही है. ठीक है, दिस वैल्यू इज 1.3. अब वो आपकी क्यों हुई है, वो पोलैरिटी के हिसाब से हुई.
when your diode D2 will be forward biased, in this case you will replace this diode with this polarity 0.7, और ये वाली जो है वो आपकी सेम एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो ये तो है हमारी 0.7 और ये है 2, एंड इफ यू मार्क दी देयर पोलैरिटीज, तो वहां से आप समझ जाएंगे कि ये कम क्यों आया है, माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो पोलैरिटी जो है वो आपकी काउंटर कर रही है, so that means the resultant battery of this is 1.3 और उसकी पोलैरिटी आपकी रहेगी इस तरीके से। तो दिस इज 1.3 और यही आपकी आउटपुट में मिलती है। इस केस में अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो आपकी आएगी 2.7। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका कॉम्बिनेशनल क्लिपर है तो उसमें हमारी दोनों जो लेवल्स हैं वो दोनों साइड में मिलेंगे। कॉम्बिनेशन का क्लिपर का जो मतलब है वो ये है कि पॉजिटिव हाफ विल बी कट, नेगेटिव हाफ विल बी कट। कितना कट होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द बायसिंग वोल्टेजेस एंड द कनेक्शंस ऑफ द डायोड। इन हियर वी हैव clipped this portion of the positive uniform waveform और नेगेटिव के लिए हमने इसको क्लिप कर दिया है। तो नेगेटिव बेसिकली हमने कंप्लीट क्लिप किया है और पॉजिटिव को हमने ऊपर से भी क्लिप किया है और नीचे से भी क्लिप किया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में या फिर आपके इंटरव्यू वगैरह में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं दैट दिस इज द आउटपुट ऑफ ए सर्किट, नाउ डिजाइन द स्कीमेटिक। आपको इनपुट आउटपुट रिलेशन दे दिया जाएगा, नाउ बेस्ड ऑन दिस डिजाइन द सर्किट। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको वही मेथड रिवर्स जो मेथड है वो अपनाना पड़ेगा कि पहले आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए क्लिपर और क्लैंपर, देन पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, फिर आप क्लिपर वो डिजाइन करेंगे। नाउ शुड आई क्लियर दीज ड्राइंग्स और एनीवन हैविंग एनी डाउट? Okay, I'm clearing these drawings. So these biased circuits are for your understanding. अगर आप फिर भी इनकी वेवफॉर्म में भेजना चाहते हो then it's up to you. But at least 4 circuits आपने डिजाइन किए भी होने चाहिए, 2 for series, 2 for parallel configuration. उसके बाद आप जितने भी आपने अगर बना लिए हैं सेव किए हुए हैं तो आप उनको भी फाइल में लगा सकते हो। सर कॉम्बिनेशन वाला भी डालना है? हाँ, कॉम्बिनेशन वाला भी डालना है। तो टोटल 5 सर्किट हो गए ठीक है सर। जो कि लैब मैनुअल के बेस पे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने किए हैं, सेव किए हैं, आप यू वांट टू शेयर, यू वांट टू ऐड इन योर फाइल, यू कैन डू दैट। ठीक है सर जो वो तो लिंक थी प्रीवियस एक्सपेरिमेंट की वो कब तक ठीक होएगी? आज रात तक हो जाएगी? मैं अभी चेक करता हूँ एक अच्छा, इसकी लिंक आपकी वेबसाइट पे ही अवेलेबल है ना? सर वेबसाइट पे जो ELE3 का जो सबमिशन लिंक है उसमें जो गूगल फॉर्म भर के अटैच करके देना होता है, उसमें जो Wait, one एक्सपेरिमेंट second, नंबर है उसमें 2 से ज़्यादा या कम ऊपर नहीं करके ले रहा। ओके हाँ ओके ओके अच्छा
I think it is resolved now. Now that has been resolved, so you can go to that link and now submit your file with the whatever experiment name it is. तो अगर कुछ स्टूडेंट्स ने सेकंड एक्सपेरिमेंट की पिछली फाइल सबमिट कर दी है तो kindly change that to experiment 3 and we'll resubmit the experiment. सर वो एक्सपेरिमेंट 3 है या 4 है? वो आपको उसको एक्सपेरिमेंट 3 रखिए. दिस इज योर एक्सपेरिमेंट 4. आपकी जो वेबसाइट पे Okay, लिखी है ना उसके हिसाब से चलिए. सर एक्चुअली आई हैव लॉस्ट ऑल माय कॉन्टैक्ट, तो सर आप अपना नंबर व्हाट्सएप कर दोगे प्लीज? ठीक है I will. ओके सर. ठीक है, तो ये आपका फोर्थ एक्सपेरिमेंट जैसे अब है उसमें आपकी क्लिपर और क्लैंपर दोनों के आएंगे. तो आप क्लिपर की फाइल बना के रेडी रखिए. जब नेक्स्ट लैब में आपकी क्लैंपर हो जाए तो उसमें आप सर्किट और उसके आउटपुट ऐड करके इकट्ठा उसको सबमिट कर दें. ठीक है. ठीक है सर. Okay, then I am ending this meeting now. If you guys have any doubt, you can ask. कोई स्टूडेंट नया आया हो जिसको कोई डाउट लग रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप भी पूछ सकते हो आप. And yes, one more thing I am reminding you guys again. Please go through the demonstration videos that are available on the website. तो क्लिपर के लिए आप इस वीडियो लिंक पे क्लिक करेंगे. Then you will see a link for the demonstration video of the hardware. ठीक है, so you can see here there is one diode and one resistor connected. ठीक है, these are jumper wires and other connected. तो इसमें आपको बताया गया है कि आप कौन सा सर्किट पहले डिजाइन करेंगे. पहले नेगेटिव क्लिपर है, देन पॉजिटिव क्लिपर है. ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे अभी कि कैसे आपका जो क्लिपर की आउटपुट है वो आ रही है. ठीक है, तो गो थ्रू ऑल दीज वीडियोस विच आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. उसके बाद आपको हार्डवेयर के पास में कोई डाउट लगता है, कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो आपने देखी कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. ओके गाइस, थैंक यू. ओके, थैंक यू सर.